Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं And a very warm welcome from the Heart of Christ और Church. हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हम हर एक का स्वागत करते हैं। We believe that each and every one of you are doing good and doing well. हम विश्वास करते हैं कि हर एक जन आप लोग सब स्वस्थ हैं परमेश्वर की कृपा में। We thank you for joining us in this live stream, and we do believe that you will share this link with your families and friends so that even they would be blessed. हम विश्वास करते हैं कि आप ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं और धन्यवाद कहना चाहते हैं। कृपया अपने इर्द गिर्द अपने मित्रों के साथ ये लिंक जरूर शेयर करिएगा। Hallelujah. हालेलुया। What a privilege to come in the midst to serve the living God. और कितना सौभाग्य बात है कि हम परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। And this is the day that the Lord has made. और ये दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। As we're going to begin the service, we're going to read from the book of Colossians chapter 3 verse 23 and 24. हम कोलोसियों का किताब खोलेंगे, उसका तीसरा अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। So it's 23 और Colossians 24 chapter 3 verse 23 and 24. So as I'm going to read in English and then the sister will read in Hindi. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and to not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Amen. हम 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। Hallelujah. हालेलुया। Yes, dear brothers and sisters, we are here not to please men, but to please the living God. हम यहाँ मनुष्य को प्रसन्न करने नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने आए हैं। As we just read, we need to do everything wholeheartedly, as not for men, but from the living God. हमें पूरे हृदय से मन से सब करना चाहिए, मनुष्य के लिए नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर के लिए। And the next verse says that knowing that He is going to reward us. ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें इनाम देने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of us would love to receive rewards and gifts? कितने सारे लोगों को परमेश्वर के हाथ से कुछ भेंट नहीं तो एक इनाम चाहिए। I believe each and every one of us, right? हम हर एक जन चाहते हैं। Be it earthly rewards or be it heavenly rewards. ये दुनिया का इनाम होने दो, स्वर्गीय इनाम होने दो। Right? And beyond that, it's the heavenly rewards which we need to look और out for. सबसे ज्यादा हमें स्वर्गीय इनाम चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Come on, church. Wherever you are, let us rise up. Be it in our bedrooms, be it at home, be it at your workplace. Rise up and look up to the Lord in prayer. हम जहाँ कर भी रहेंगे, आए उठ जाए और परमेश्वर का प्रार्थना करें, परमेश्वर से और खुद को समर्पित करें। Hallelujah. We thank you, Jesus, for this time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया। We thank you for the grace and mercies. आपके अनुग्रह दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। We thank you for this new day which you have blessed us, O Father. प्रभु ये नए दिन आपने दिखाया उसके लिए कोटि धन्यवाद। The day which you have blessed us, Father God, we reflect what are the blessings which you have given in our और lives. जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है वो आज हम याद करते हैं प्रभु। Lord, as we read through your word, O Father God, that let us not be men pleasers, but let us be pleasers of the living God. प्रभु हम मनुष्य को प्रसन्न न करें लेकिन जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करें। And as your word says that whatever we do, let it be wholeheartedly, और जो कुछ भी हम करते हैं हम पूरे हृदय से करें प्रभु, so that we will receive your reward. ताकि हम आपके नाम को पाए। Lord, let this prayer be in our lives forever, Father God. प्रभु ये हमारी प्रार्थना हमेशा के लिए रहे। At times, be it in our workplace, be it even at our homes, there might not be recognition. और प्रभु हमारे घर में होने तो जहाँ कहीं भी हो, ऐसा हो सकता है कि लोग हमें नहीं देखते। But your word clearly says that if we have done it wholeheartedly, there will be a reward from the living लेकिन God. आपके वचन में लिखा है अगर हम पूरे हृदय से करते हैं हमें वो इनाम जरूर मिलेगा। Lord, Father God, we pray that Jesus, you will touch each and everyone's lives, Father God, और today. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम हर एक जीवन को आप छूइए। Let this day be a day of new blessings and mercies. प्रभु आज के दिन नए आशीष
और नया अनुग्रह मिले हमारे जीवन में। Lord, we pray for all our church members who are joining us live in this live stream, that you will bless them, Father और God. प्रभु आज जो कोई हमारे चर्च मेंबर्स हमारे कलीसिया के सदस्य देख रहे हैं, हर एक की जीवन को आप आशीष दीजिए। And we pray for our families, we pray for our friends, oh Father God, that you will be their right hand, oh Father और God. प्रभु हम हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें संभालिए प्रभु। Once again, we commit and we submit our plans, our petitions, our prayers into your precious hands, oh Lord. आज भी एक और बार हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, सब कुछ हम समर्पित करते हैं। We commit our lives into your precious hands, Lord. हमारे पूरे जीवन को हम समर्पित करते हैं। Because without you, we are nothing, Father प्रभु God. आपके सिवा हम कुछ नहीं है। Because your word says we are dust. Out of dust, you have made us like your own image, oh Father प्रभु God. वचन में लिखा है, आपने हमें मिट्टी से बनाया है। But when we have, without Christ, there is nothing, there is no value in our lives, oh Father प्रभु God. आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी, हम कुछ नहीं है कहलाने। Lord, we also pray that Jesus, all those who are searching and seeking for answers, that you will be the answer into their lives, oh Father और प्रभु God. जो कोई उत्तर ढूंढ रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन के लिए उत्तर बने। Once again, we thank you, Jesus, for all the wonderful things you have done in our और lives. प्रभु एक और बात धन्यवाद कहते हैं, जो कुछ भी अच्छे कार्य आपने किया है उसके लिए। And we thank you for the things which you're going to do in the near और future. आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं उसके लिए कोटि कोटि We धन्यवाद। love you, Lord, and we give you all the glory and honor. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं। In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम मांगते हैं And we say aloud, और Amen. हम कहेंगे आमेन। Hallelujah. 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 How many of us are ready so that we could receive His word and His word will work wondrous things in your life? इतने सारे लोग आज उत्साहित है कि हम परमेश्वर के वचन को वैसे ही अपनाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान कार्य करे। As we enter into the service, dear brothers and sisters, do not take it casually, do not take things lightly, but have it fervently so that you and your families and your households will be blessed. और ऐसे ये समय को व्यर्थ में न बिताएंगे, लेकिन पूरे हृदय से मन से हम ये समय बिताएंगे ताकि हमारे परिवार जो है और हमें परमेश्वर आशीष करे। As we all are excited to welcome the worship team, so let us be enthusiastic to serve the living God. और इसीलिए उत्साहित रह के हमारे आराधकों के संग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय मसीह की सबको। हम अपने आप को समर्पित करेंगे, तैयार करेंगे आज भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु हमारे बीच में है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु है। अपने आप को तैयार करते हुए ताली बजाकर उत्साह के साथ आवाज उठाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me,
for us. Hallelujah. यहोवा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारी चिंता करता है। ये दुनिया हमें छोड़ सकता है, ठुकरा सकता है, भूल सकता है, पर परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। परिस्थिति कैसे भी रहे, हमारा परमेश्वर अभी भी जिंदा है, हमारा परमेश्वर सिंहासन पर है, वो विराजमान करते हैं। हालेलुया। जैसे हम उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने आप को हम नम्र करते कहेंगे, यीशु धन्यवाद कि आप हमारे लिए है, धन्यवाद कि आप सब कुछ अधिकार आपके हाथ में है, आप हमें चलाएंगे। हालेलुया। उत्साह के साथ जैसे हम जुड़े हैं, आप आवाज उठाकर, ताली बजाकर आवाज उठाकर कहेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप मेरे जीवन में है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। वी विल सेलिब्रेट एंड सिंग अनटू द लॉर्ड। हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर एक ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आइए साथ बढ़कर सलीब पर मरा, हमको बचाने
नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। आई मुंह खोल के कहे प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं है, इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु आपके नाम के अलावा। आई विश्वास के साथ हम कहेंगे सिर्फ आपके नाम में वो सामर्थ है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। हालेलुया। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे कि यीशु नाम। वचन कहता है कि एक दिन ऐसे आएगा कि पूरा दुनिया ये नाम के सामने झुकने वाली है। हर जुबान कहेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। A day will come when the whole world will bow down and say Jesus is Lord। पर आज भी प्रभु ने ये कृपा हमें दिया, दया हमें दिया कि हम जानते हैं यीशु का नाम को, हम जानते हैं यीशु मसीह को। आज भी हम झुकते और कहते हैं धन्यवाद यीशु, आप जिंदा खुदा है, जीते परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को नम्र करके कहेंगे यीशु धन्यवाद कि आपने हमारी सुधि ली, धन्यवाद कि आपके नाम में हमें उद्धार है। Thank you that we have salvation in this one name. The word of God says salvation is found in no other name except the name of Jesus Christ। उद्धार कोई और नाम में नहीं है, केवल यीशु मसीह के नाम में है। जैसे हमने गाया कि प्रभु यीशु को चख के देखो कि वो कितना भला है। Taste and see that the Lord is good। Blessed is the man who trusts in him। जो भी उन पर विश्वास करते हैं वो आशीषित लोग हैं। हालेलुया। आज भी हम जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आशीषित लोग हैं। Come on, say I am a blessed person। I am blessed। मैं आशीषित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम को जाना है। उद्धार का कोई और मार्ग नहीं है, उद्धार का और कोई वे नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह केवल एक है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। आज भी अगर आपने यीशु मसीह को कभी जाना नहीं है, आज भी अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे और कहेंगे यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, तो यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता बन जाएंगे। He will be your savior। हालेलुया। आमीन। जो हमारे साथ जुड़े हैं आज भी परमेश्वर यीशु को खोजेंगे। वो एक नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है। वो एक नाम में लंगड़ा चलता है, वो एक नाम में अंधा देखता है, वो एक नाम में मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। That's the power in the name of Jesus। That's the power in the name of Jesus। जैसे हम ये नाम को लेते हैं, सुनते हैं, हम अपने अंदर विश्वास को बढ़ाएंगे। वचन कहता है कि अंधा व्यक्ति चिल्लाता यीशु दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। Jesus, son of David, have mercy on me। उसने वो नाम को जाना, उसने वो नाम को पहचाना और यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जब हम इस नाम को जानेंगे, इस सामर्थ को जानेंगे, तो हमारी सारी जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा करेगा। और पहले पुकारेंगे यीशु दाऊद का पुत्र हम पर दया कर। यीशु हमें जाना है कि आप जीते परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु हम जानते हैं कि आप तीसरे दिन जी उठे।
यीशु, हम जानते हैं कि आप वापस आने वाले हैं। कलीसिया को, हमारे परिवारों को हमें तैयार कीजिए प्रभु। आपके लिए खड़े रहने के अंत तक हमें सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आज भी हम जो हमारे साथ जुड़े हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके नाम से प्रभु हम हर एक को आशीष करते हैं। अगर कोई भी कुछ भी बीमारी में है प्रभु, कुछ भी दुख में है, तकलीफ में है, आज भी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुड़ा दीजिए प्रभु, उन्हें आजाद कीजिए यीशु। आपके प्रेम से उनके हृदय को भर दीजिए, क्योंकि केवल आप ही एक है जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा राजा, हमारा प्रभु। ये दुनिया की बातें, ये संसार की बातें प्रभु बहुत बार आपके लोगों को आपसे दूर करता है, पर आज भी प्रभु ये नाम से इनको प्रभु आप उद्धार दीजिए। We pray for salvation Daddy today. As we sang, your word says that salvation found in no other name. This salvation found in no other name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. Thank you, Jesus. आपके लहू से हर पाप को, हर श्राप को मिटा दीजिए यीशु के नाम से। मैं आता हूँ प्रभु की भवन में, मैं आता हूँ लहू के द्वारा, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ गाने महिमा।
We thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, और आज भी हम आपका स्तुति करते महिमा करते हैं यीशु। You are worthy, Lord Father. You are holy, Lord Jesus. We submit and surrender ourselves totally into your hands. Take total control of our life. You alone are worthy, Lord Father. Take control. हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, सारी स्तुति आपको देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो यीशु, आपका नाम को ऊंचा कीजिए प्रभु। ये पूरे समय हम आपके हाथों में देते हैं, हमसे बात कीजिए प्रभु। आपके वचन द्वारा पासवान को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। हमारे जीवन के लिए जो जरूरत है केवल आप जानते हैं प्रभु, और जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन के लिए आपके करीब लाने वाले, आपकी ओर लाने वाले, चंगाई देने वाले संदेश प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हर एक बंधन को, हर एक श्राप को, जो कुछ हमारे जीवन में है जो आपको प्रसन्न न आए, आज हमारे जीवन से वो निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये पूरे समय हम आपके हाथों में देते हैं।
अब विराजमान हुई आपका नाम को ऊंचा कीजिए. Let your name alone be glorified and exalted, Lord Father. We give this time into your hands. Speak to us through your word. Help us to listen to your words carefully and receive it as it is, Lord Father. We give you all the glory, honor and praise. यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हमारा परमेश्वर जीवित है. आमेन, आमेन. आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव सर्विस में करना चाहते हैं. जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप ये लिंक अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी आज का वचन सुनकर परमेश्वर में और आगे बढ़े. हालेलुया. जैसे अपने आप को हम तैयार करते हैं, अपने बाइबल लेकर आप तैयार रहिए. परमेश्वर आज भी हमसे बात करेगा. आमेन. The one whom we worship, he is worthy. हम जिसकी आराधना करते हैं वो आराधना की योग्य है. तो अपने मन हृदय को खोल देंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मुझसे बात कीजिए. स्पीक टू मी फादर, आई वांट टू हियर. मैं चाहता हूँ मैं सुनूं. आमेन. जैसे पास्टर आके वचन बांटेंगे, परमेश्वर जैसे बात करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया बदलाव, एक नई चंगाई, एक नया छुटकारा, आज भी एक नया कार्य हमारे जीवन में करके अपने आप की महिमा करेंगे. आमेन. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. पास्टर आकर हमारे बीच में वचन बांटेंगे. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ. I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिछले दिन से एक हफ्ते तक आपको और हमको सबको संभाला है परमेश्वर. आने वाले दिनों में भी प्रभु हम सबको संभालेंगे, इसलिए हम धन्यवाद के साथ शुरू करेंगे. And the Lord has been faithfully protecting us all these days, and surely He will be faithful enough to protect us in all the days ahead. पिछले संडे जो परमेश्वर ने आपके साथ जो बात किया है, वो जिनने फोन करके परमेश्वर को नाम को महिमा किया है. And even last Sunday, the Lord ministered to many of you, and you have called back and praised the Lord and given Him glory. वो जो नया जीवन शुरू करने की मतलब जो वो शुरू कर दिया है. And a lot of you have begun a new life, and we praise God for वो that. जिनके जीवन में चंगाई हो गया है. A lot of you have received a healing, and we praise God. सब कुछ प्रभु परमेश्वर के लिए हम देते हैं. And let's give the glory to the Lord Jesus. आमीन. Amen. आज भी परमेश्वर नया कार्य आपके जीवन में करने वाला है. And even this day, the Lord will perform a new work in your life. आपको परमेश्वर का वचन सुन के उसका आज्ञा पालन करने से और आपको नया जीवन में नया आशीष देने वाला And even है. when you hear the word of God and you put it into practice, God will surely open new blessings for you. मेरे प्रियो, हर चीज को परमेश्वर कर सकता है. And for God, all things are possible. और परमेश्वर यीशु मसीह आपका साथ रहने से सब चीज काम हो जाएगा. And when the Lord is with you, surely all things will come to pass. हालेलुया. Hallelujah. तो एक समय होता है परमेश्वर का आशीष देने के लिए. And God also has a timing to bless you. एक वचन में हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की. देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है. देखो, अभी वह उद्धार का दिन है. हालेलुया. Hallelujah. जो वचन में जो कहते हैं, अभी ये जो है प्रसन्न का समय है. And even this is the appointed time. क्यों दूसरा समय सही नहीं है? Now is the appointed time. Why some other time is not right? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है. बहुत साल से सब जन यही सुना रहा है, बहुत जन यही पूछ रहा है, आपका प्रभु आने वाला था करके बहुत दिन से, बोल अभी तक आया क्यों नहीं? And a lot of people, of course, know that Jesus is coming soon, and many questions saying, "Your God said He's coming. Where is He? Why has He not yet come?"
और बहुत समय लगेगा करके भोजन अभी भी सोच रहे हैं। And a lot of people also assume that there's a lot of time left. मेरे प्रियो, अभी से प्रभु आने के लिए समय हो चुका है, अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि जो पूरा दुनिया से उनके बारे में मालूम होने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है। And we see that yes, now is the appointed time. Now is the time for salvation. Jesus is coming soon, and He's giving you some time so that the world will know and repent and turn back to तो Him. अभी ये जो समय है, आप सोचेंगे हम बाद में सुधर लेंगे, बाद में उधर पाएंगे, बाद में हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, बाद में कभी मौका नहीं मिलेंगे। And you might say that later on I'll change, later on I'll listen to the word, later on I'll receive salvation. But remember, later never comes. परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पे आने के बाद सिर्फ उनका आने का सुसमाचार सुनाया। And when Jesus came into this world, He preached the gospel about His coming. और उन्होंने यही बताया स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का राज्य के बारे में उन्होंने हर बातों को हमें सिखा दिया। And He was the one who taught us everything about the kingdom of God. तो वो आने से पहले जो पुराना नियम में यीशु मसीह आने वाला है, जो उद्धारकर्ता आने वाला है, हम सबको बचाने वाला है, वो आने वाला करके बार बार अपने भविष्यवक्ता द्वारा बात किया था। And we see that God already foretold the people through His prophets that the Son of God will be coming into this world. He will be coming into this world to deliver it and to give salvation. हालेलुया। Hallelujah. वो आया है, हम सबको उद्धार दे दिया है। And we see that as it was prophesied, Jesus came into this world. He granted us salvation. प्रभु की ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद Let's give a clap and thank the Lord Jesus. Hallelujah. यस, वो हमें बचा लिया है। And yes, Jesus has saved us. और उसमें वचन में जो लिखा है, अगर यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास के साथ उनका आज्ञा पालन करेगी तो वो बच जाएगा। And the word of God says that all those who believe in the Lord Jesus Christ and they hear and obey His command, surely they shall be saved. वो लिखा है, अगर तुम विश्वासी बन गए हो, तुम यीशु को स्वीकार करेंगे, तुम्हारा घराना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा खानदान, हर जन वो उद्धार पाएंगे। And the word of God says that when you have received salvation, surely your family will also be saved. तो आज परमेश्वर जो बात करता है, आज से। And now God is speaking about now. Now is the appointed time. आप ये सोचेंगे बाद में उधर हम सुधार लेंगे। And you might assume that later on I'll do some changes or I'll change. इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन छोटे से शॉर्टकट में आपको हम बताना चाहता हूँ। There are a lot of things we can speak about it. Let me tell you something in short. क्योंकि जो अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? And in order to receive, the God's grace upon your life, what we must do is, आपको कोई चीज को करना पड़ेगा। कोई आप परमेश्वर को विश्वास तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। you believe in the Lord, that is good. और परमेश्वर आज्ञा भी पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। You obey His commands and it's good. और आपका बच्चों को, आपका परिवार को, आपका भाई को, आपका बहन को, सबको परमेश्वर के बारे में सुनाना बहुत जरूरी है। And it's very necessary that you preach the gospel to your brothers, your sisters and your family. अगर आप बता रहे ये समय में ये बता रहे, अभी तो परमेश्वर का जो वचन जो कहते हैं, यही अनुग्रह समय है। And the word of God says that now is the day of salvation. It's a time for everyone to be saved. हालेलुया। Hallelujah. आपको कभी मतलब कल आपके जीवन में कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला आपको कुछ पता है? Are you assured about what is going to happen tomorrow? कुछ नहीं पता है। You cannot guess anything. ईश्वर में किसी को भी ना पता कल क्या होने वाला अपने जीवन में। And no one can ever claim and say that they know what is going to happen in their tomorrow. बहुत जन अलग-अलग कार्य के बारे में सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी किया नहीं है। A lot of people planned and thought various things, but God destroyed everything. लेकिन आपका जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ होना चाहता है, आपको कुछ पाना चाहता है, तब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ में रहने से होगा। And if you want something to happen in your life, if you want some thing to come to pass, you need the Lord Jesus Christ in your life. हम वचन में पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 7 Acts chapter 7 verse 10। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 10वां वचन। And delivered him out of all his troubles, and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt. And he made him governor over Egypt and all his house. और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की।
और हालेलुया। उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। आमीन। ये प्रिय, ये जो हम बहुत बार जो पढ़ा है यूसुफ का कहानी जो पढ़ा है, And my beloved, we have read about Joseph many a times. अब एक बात अच्छी तरह समझ लिए, प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के साथ में थे And we see that God was with Joseph, और इसी कारण जो यूसुफ ने जो भी कार्य किया है उसमें सफलता मिला है। and because God was with him, that's the reason he was successful in everything that he did. आपको ये वचन में आप देख लीजिए, यूसुफ का कहानी में 10वां वचन में जो लिखा है, यूसुफ का जीवन में काफी समस्या आया, काफी तकलीफ आया है। And the word of God says that he went through so much trouble and so much pain. यीशु मसीह आपके जीवन में होने के समय में आपको ये नहीं सोचना है मुझे कुछ नहीं होगा, वो नहीं है। And when Jesus is in your life, do not assume that nothing will nothing can go wrong. लेकिन परमेश्वर हर चीजों से वो छुड़ाएंगे। You might go through troubles, but God will deliver you from it all. ये जीवन में वो बंदीगृह में के अंदर था, And we see that Joseph was in prison. काफी तकलीफ में रोया He होगा, was in much trouble and he may have been tears. परमेश्वर के बारे में सोचता होंगे, He was remembering his God. प्रार्थना करते होंगे, He was praying. और याद रखना है क्योंकि वो हर प्रार्थना है लेकिन उत्तर इमीडिएटली परमेश्वर दिया नहीं है, लेकिन सही समय में परमेश्वर उत्तर And दिया we है। see that he prayed so much, but God did not answer immediately. There was an appointed time when God saved him. हम वचन में वापस पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14। Do not be या, second। Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। ये लिखा है मेरे प्रियो, कम ऑन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। ये जो लिखा है, अभी ये जो बंदीगृह में जो मिस्र देश में यूसुफ तो था, We see that Joseph was in prison and he was in the land of Egypt. आप समझ लो वो जो सिचुएशन आप देख लीजिए, दूसरे जातियों के साथ, दूसरा धर्म के साथ में जीने वाले के साथ में यूसुफ उधर था। And we see that he was in bondage in a foreign land with people who never knew his God. लेकिन ये वचन में जो लिखा है, जो क्या लिखा है, मतलब जो दूसरा जो आप विश्वासी के साथ में आपको बात नहीं है करके लिखा है। And here the word of God says that we have no communion with unbelievers. अगर आप जो क्षेत्र में काम करते होंगे, कोई जगह में कुछ आपका कुछ बिजनेस होंगे, जो भी व्हाटएवर में भी, लेकिन जो जगह में आपको समझना है आपको किस तरफ रहना है, किस तरफ जीना है, आपको बहुत समझना You might be चाहिए। working and having business or doing anything wherever you are in relation with a lot of unbelievers, but you must know and be aware of what you are doing. तो उनको परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करने के बाद में भी वो परमेश्वर का बारे में सोच रहा था। And we see that after Joseph was elevated, even after that he was in the Lord. तो इसी तरह से आपके जीवन में भी बहुत समझना बहुत जरूरी है और आपको उसके बारे में माइंड में रखना बहुत जरूरी है। And see to it that the things of this world will not impact you, just like how Joseph lived. जो क्या लिखा है, मतलब वापस 14 और 15 पढ़ेंगे। Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ये दोनों को कभी भी मिल नहीं सकता है। And we cannot unite these things. और वर्ष 15 में भी। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, तो ये दो और चीज याद रखिए। या विश्वासी के साथ अविश्वासी की क्या नाता। अभी आप विश्वासी बन गया है, आपका संतान भी विश्वासी हो गया है। Now you are a believer, your descendants are believers. Come on,
अभी आप जो क्षेत्र में काम करते होंगे तो वो सब जन बिलीवर तो नहीं होगा। But where you're working, the people you are in contact with, of course, they all might not be believers. जो अलग अलग धर्म का होंगे, अलग अलग हैबिट होंगे, अलग अलग भाषा बात करता होंगे, There might be people with different characteristics, different beliefs. तो आपको उधर परमेश्वर को दिखाना पड़ता है। But you have to be a testimony where you are. आपका बेटा, आपका बेटी अभी स्कूल में जाने वाला है, अभी बहुत दिन के बाद अभी स्कूल चालू हो रहा है, स्कूल में जाने वाला है। Your children are going to attend school after so many months. The schools are opening up अभी recently. जो कॉलेज में जाने वाला है, They might go to the colleges. आप ये समझ लो, जो आपका बेटा बेटी जो जा रहा है, कौन सी जगह में जाते हैं, And your children, where they are going, you must understand. किसके साथ में बैठने वाला है, Who they are going to be seated with. किसके साथ में उनका फ्रेंडशिप होने वाला है, Who are they going to get into friendship तो with? कैसा आपको मालूम होगा? आप घर पे बैठा है, आप एक विश्वास में तो मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रहा है पढ़ने के लिए, सही सलामत पढ़ के आएगा। You have some faith, you're sending your children that they will go to school, they will study well and come. But you do not know what they are doing there. जो विश्वासी जो है आपका बेटा है, आपका बेटी है, लेकिन जो जा रहा है उधर सब जन अविश्वासी तो And we see that your child might be a believer, but they're going into the world in the midst of people who do not believe in God. तो उनके रोज रोज उनके ज्यादा उनके साथ मुलाकात होता है, उनके साथ बातचीत होता है, उनके साथ दोस्ती हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? And when your children are in contact with the people of the world, they have friendship, they spend time there. So what happens is, आप जो सोच के मेरा बेटा मेरा बेटी सही सलामत रहेंगे, you might be assuming, no, my children are very much in the Lord. आपका बस क्या गारंटी है? But what assurance do you have? आप जो देखा है, जो दाऊद भी पापों में गिर गया है, And we see that David himself fell into और transgression. बहुत जन के जीवन में मतलब जो पाप आया है उसमें जो यूसुफ ने बच के भाग गया, And there are some people like Joseph who escaped from sin also. और इस तरह पुराना नियम में बहुत परमेश्वर के दास लोग पापों में गिर गया था, And we see that in the Old Testament there are many who fell into sin and transgression. और नया नया नियम में भी बहुत जन पापों में गिर गया था, And we see that many even turned back in the New Testament. बहुत जन पीछे मुड़ के चला गया है, Many sinned and turned back from God. और बहुत जन यीशु को मतलब क्रूसी करके पीछे चला गया, मुड़ के A गया। lot of people, they denied Jesus and turned back. तो आपका बेटा बेटी जो जाते हैं काम पर, स्कूल में, कॉलेज में, आप समझ लो 7-8 घंटा वो लोग साथ मिल रहा है, जा रहा है, आपका बस क्या वारंटी है, नहीं तो क्या गारंटी है? आपका बच्चे को पूछिए। And your children are out in the world, they are spending so many hours outside in the world with the worldly people. But what assurance do you have that whether they are in the right fellowship or in the Lord? आप सुधरने के समय आ गया है। But now is the appointed time. अब बाद में एक दिन बैठकर रो के कुछ फायदा नहीं है। Later on, if you sit and you cry or you weep, and why? आज बहुत जन यही तो प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर लीजिए, वो नाश हो रहा है, हमारा बात नहीं सुन रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, कुछ प्रार्थना नहीं करती है करके बहुत विश्वासी भी आज प्रार्थना के लिए And मांग we रहे हैं। see that there are a lot of parents now who are crying that my son, my daughter is not in the Lord, they are astray, they've gone astray. Please pray for them that they must come back to God. मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चों, आप एक बार याद रखिएगा, आपका घर का बगल में, आपका घर का अंदर समझो साइड में कुछ छोटे से प्लांट होता है, आप उसको सब पानी डालते सब बड़ा होता है। Assume that you have a little plant you're growing maybe outside your house and every day you're watering it. और कभी कभी उसके साथ में कुछ गलत झाड़ भी आ जाता है, And many times you have some wild plants also growing nearby. और आपको जो मतलब जो घाट जो गलत जो प्लांट है उसको आपको काटना है, And you want to at times you want to uproot those unwanted plants. और कभी कभी उसको मतलब आपको उसके झाड़ से उठा के मतलब निकालना है, पूरा मतलब रूट से निकाल के फेंकने के आपको मन है, And you want to actually uproot them from the root, want to take it out totally and throw it away. तो वो झाड़ को पकड़ के खींचते टाइम जो अच्छा जो प्लांट है वो भी साथ में बाहर आ जाता Many है। a times when you are uprooting those unwanted plants, the good plant also gets uprooted. Come on, भाई अंडरस्टैंड। आप ये समझ ले, प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मन में है ये जो हमें नहीं चाहिए उसको आप निकालना चाहते हो, You have in your mind that you want to only uproot the unwanted plant. तो आपने उसको पकड़ के ले लिया, किस लिया? So you have, just imagine that you actually held on to it and you pulled it out. साथ में जो आपका जो अच्छा झाड़ है, जो आपको जो पसंद प्लांट है वो भी बाहर आ जाता And many a है। times it so happens that
the plant which you have planted on purpose, even that gets uprooted by mistake. अभी उससे पहले एकदम छोटे से मतलब उनको अच्छी तरह आप निकलने से वो प्लांट का ठीक कर सकता था। If it was in a time when the plants were small, at that time itself when you remove, nothing would have affected तो anything. आपका परिवार को, आपका बेटा बेटी, आपका भाई बहन जो भी है, जो छोटी उम्र से परमेश्वर के वचन से जीना जरूरी है। It's very necessary that your children from a young age, they must start living in the word of God. वो मेरा बेटा पहले से दर्शन किया, मेरा बेटी पहले से किया करके वो बात नहीं है। आज आपका परमेश्वर का वचन आप सुन रहे क्या? And before my child knew the Lord, before my child was saved, is your child saved today? आज परमेश्वर का आवाज तुम सुन रहे क्या? Are you listening to the word of God today? आज मेरा आपका बेटा और बेटी परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं क्या? Even today, are they listening and obeying the word of God? आप ये देख लीजिए, बहुत जगह में आज न्यूज में भी देख लीजिए और आपको भी पता भी होगा, आपका आगे बगल में भी आप सुनता भी होंगे। And you might watch in the news, you might hear it here and there around you. ये विश्वासी के घर पे भी बहुत कुछ गड़बड़ चलता है। A lot of believers are having so much confusion in their houses. जो विश्वासी के घर पे जो चल रहा है वही विश्वासी के घर पे चल रहा है। All those things that happen in an unbeliever's house, the same things happen in a believer's house. क्यों? Why? परमेश्वर आपको कहता है तुम्हारा और उनका कुछ संबंध ही नहीं है, तो उनका जो चाल चलन तुम्हारा फैमिली में कैसा होता है? And when God says that a believer and unbeliever has no union, then how can those same things that happen in their house happen in your house? कारण सिर्फ एक ही है, परमेश्वर तुम्हारा घर पे नहीं है। It means that God is not part of your house or God is not dwelling in परमेश्वर you. तुम्हारा अंदर नहीं है। God does not abide in you. आप पहले सबसे पहले ये याद रखना है, Remember this इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। and accept it. अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। When you accept it, then only God can transform you. आप समझ लीजिए। और जो ध्यान क्या हो गया, बड़ा होने के बाद समझ लीजिए, आपको आप बोलेंगे ठीक है इसको बाद में हम काट के फेंक देंगे। And when the tree has grown, suppose it's been a long time, it's growing much, and then you think later on I will cut. आपका घर के बगल में कोई बड़ा झाड़ मतलब ट्री बन गया, बड़ा झाड़ बन गया। Now suppose that the tree has grown up in front of your house. आपको मन में क्या हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, इसके काट के फेंकना है। And you might think, okay, I don't want this plant, so I will cut it off. आप जाके काट के देख लो Go and cut it and see क्या होगा। what happens. सीधा म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा, आपको पकड़ के लेके जाएगा। And when you cut it after it's grown, the municipality people will come and they will come and catch you. वो ट्री कौन बनाया? Who actually planted the tree? कौन उसको पानी सब डाल के पाला था? Who watered it and took care of it? आपने किया है। You did it. अभी आपको उसको कट करने के लिए आपका अधिकार है? But do you have rights to cut it now? नहीं। No. यही बात याद रखिए, जो आपका जो संतान इस तरफ होने के बाद आपका उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। And after you have let go and you let the things grow, after your children have gone astray, it's very hard for you to get into control. आपका बेटा बेटी बड़ा होने के बाद उसको आप कोई भी अगर कुछ गलती कर रहा है तो आप कंट्रोल करने जाएंगे, आप सपोज एक मारने के लिए हाथ उठाएंगे, आपका हाथ को पकड़ के रुकाएगा। And after the children have grown, if at all they have done something wrong, and when you suppose that as a parent you raise your hand in anger, they will come and hold your hand. वो आपको ऊपर से आपको वार्निंग देगा। They will warn you in return. आप उसको वार्निंग देंगे, इस तरह तुम नहीं करना करके आप चिल्लाएंगे तो वो बोलेगा हाथ मत लगाओ, ऐसा वो आपको भी वार्निंग देंगे। And you might raise your hand and say that oh don't do this, and then they will raise their voice and tell you that you stay under control. और वो भी ये भी बताएंगे हाथ लगा के दिखाओ। And they might also cross question telling you, come touch me and show. ये सब हो रहा है। And these things happen. क्यों हो रहा है? Why? आपने कर दिया इस तरह। It's because of you. आपने इस तरह पाला है। You are the one who grew it like this. परमेश्वर का भय आपने दिया नहीं अपने संतान You को। did not teach the fear of God to your अगर children. आप परमेश्वर का भय मांगने वाला है, लेकिन आपको संतान को भय देना जरूरी है। Maybe you fear God, but you are supposed to teach the fear of the Lord to your आपको children. परमेश्वर का वचन को सुनाना जरूरी है। From a small age, you're supposed to teach the word of God to your परमेश्वर की children. स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया करके बताया God, है। the word of God says, we were made to praise the Lord. आपको परमेश्वर क्यों बना दिया? Why did God create you? कमान उत्तर दीजिए। Answer. परमेश्वर आपको क्यों बना दिया? Why did God create you? किसके लिए बना दिया? For whom and for what? वचन में ये जो लिखा है, आपको जो बनाया सिर्फ परमेश्वर के लिए बनाया। God created you for Himself. तो आपका बेटा किसके लिए बनाया? Why did God create your son? परमेश्वर के लिए बनाया For है। the Lord. आप याद रखो, आपके बेटे का अच्छा पढ़ाई दे रहे हो, Give your children good education. अच्छा कपड़ा दे रहे हो, You might give them good clothing. अच्छा भोजन दे रहे हो, You give them good food. बहुत अच्छी बात है। It's good. लेकिन आपने परमेश्वर को दिया कि आपको बेटे Did
you all give your children God? आपने परमेश्वर को दिया कि नहीं, इसके जवाब दे दो And मुझे। answer today whether you gave your children the Most High God. अगर परमेश्वर को आप दिया तो परमेश्वर उनके साथ में रहता है। When you teach them and you give them the word of God and you teach them about God, God abides with them. अंतिम दिन हो चुका We है। have come in the last days. दूसरे धर्म वाला क्या बोलता रहा है, अभी कलयुग हो गया है। And many other people, unbelievers, they speak about it as some other times. मतलब जो सब जगह में पाप बढ़ जा रहा है। And we see that there's so much sin lately in the world. कोई भी आदमी किसी के ऊपर प्रेम नहीं है, सब बदला ले रहा We है। see that love has grown cold. People are bent on taking revenge. जो सब जन सोच रहा है कैसा इनको लूट लूं, कैसा इनको मार दूं, कैसा इनको कैप्चर कर करके, यही उनका मन में होते हैं। Everybody's mind is about destroying and destruction. They are thinking and planning how to destroy the other, how to, rob the others. वो आपका भाई होने दो, आपका बहन होने दो, आपको पड़ोसी होने दो, वो आपको दुश्मन नहीं है। It may be your brother, your sister, or your neighbor. They are not your enemies. क्योंकि उनके अंदर शैतान घुस जाता है आपके खिलाफ काम करने के लिए। Understand, it is not them, but it is Satan who works inside and through them. तो आप उसको शैतान को मौका दे रहे हो, इसी कारण शैतान आपका अंदर आता है, आपको उसके साथ लड़ाई शुरू And करता we है। see that you give Satan a foothold, and therefore he stirs up trouble. इसलिए मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर आपसे जो बात करते हैं, क्योंकि आपका जो संतान जो जा रहा है, पढ़ने के लिए जाने वाला है, सबको परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह सिखा दीजिए। My beloved, even today as parents, teach your children the word of God. उनके परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के बारे में बात कर लीजिए। Speak about the Holy Spirit to your children. परमेश्वर का अभिषेक को पाने के लिए उसको मदद कर लीजिए। Help them to receive the anointing of God. कैसे आपको परमेश्वर का अभिषेक आएगा? And how can you receive the anointing? अगर परमेश्वर का अभिषेक आपका अंदर, आपका बच्चे के ऊपर, आपका बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? And in order to receive the anointing of the Most High God upon your children, what must you do? पवित्र जीवन बिताना है। Start living a holy और life. पवित्र जीवन बिताने से किस तरफ से ये परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे, उसी तरफ से आपका बेटा बेटी के साथ में रहेंगे और उनको छुटकारा देंगे। And when your children live a holy life for the Lord, just as God was with Joseph in all his troubles, God will deliver your children from all their troubles. हालेलुया। Hallelujah. Genesis chapter 39 verse 21 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। ये पेज ऐसा रहने दो, आपका जो सेकंड कोरिंथियन का रहने दो, आप अभी पढ़ लेंगे पहला जेनेसिस में। कम ऑन। Genesis 39 verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. And whatever they did there, it was his doing. पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। याद रखो क्या बता है, यहोवा परमेश्वर इनके साथ में थे। It's written, the Lord was with Joseph. वो किधर था? बंदीगृह में। He was in prison. तो आप समझो उस प्रॉब्लम में फंस गए होंगे और कोई ने आपको फंसाया होंगे। Maybe you are stuck in trouble because of yourself, or something else has put you into trouble. याद रखो, अभी ये जो बंदीगृह में यूसुफ ने कुछ गुनाह किया? Did Joseph commit any crime that he was worthy to be in the prison? नहीं किया है। No. तो अभी आप समझ लो, हो सकता है आपके जीवन में भी आपने परमेश्वर को भाई मान लिया, आपके जीवन में काफी नाश हो रहा है, आपको भी पता नहीं क्यों हो गया है। Many a times, suppose that you are fearing God and you live, and you're going through much trouble, and you also cannot understand why. तो अगर इस सिचुएशन में किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कार्य जो किया है, उसी तरफ से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। Just like how God delivered Joseph in his prison, God will deliver you from your prison also. जो लिखा है कारण सिर्फ एक ही है, फिर परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। It's written, the Lord was with Joseph, and that itself is everything. आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में अगर इस तरफ से बंदीगृह में मतलब ये मत समझ लीजिए, बंदीगृह मतलब जैसे जेल नहीं है, प्रिजन नहीं है। We're not talking, when we talk about prison, we say that your family is maybe in some bondage or in prison. Just, you're not thinking about the real prison there. That means you are controlled by someone. आपको समझना है कि आप किसी के कब्जे में हैं। मतलब
मे भी कुछ भी चीज का, It might be a bondage that you have brought under control. मे भी बीमारी के अंदर फंसे It होंगे, might be some sickness. और कोई किसी से पैसा उधार लेके आपने नहीं दिया होंगे, घर Maybe you are stuck, you're in bondage in prison by debtors. और आपने कोई फ्रेंड का, आपका कोई मित्र है, उनके साथ में आप जोड़ने के बाद उनके कारण आप अंदर Maybe प्रॉब्लम because of your friendship, because of that, because of your friends, maybe you are put into trouble. और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अच्छे जीवन बिताया, फिर कोई ने कोई आपको अडॉप्ट किया, कंट्रोल किया And होगा। maybe you are living a good life, fearing God, and somebody else has put you into trouble. लेकिन वो ट्रबल में, जो सिचुएशन में, जो तकलीफ में, जो समस्या में, परमेश्वर यीशु तुम्हें छुड़ाएंगे। But whatever prison you are in, whatever bondage you are in, the Lord Jesus will deliver you. और उसी क्षेत्र में याद रखिए, वर्ष 22 में जो लिखा है, आपको आश्चर्य होगा, याद रखो, जो आपने प्रॉब्लम में फंस गया है, वही जगह में परमेश्वर किस तरह पूछा उठा रहा है। In the same place where you were in bondage and you are stuck, how God lifts you up, we'll read. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अब ये समझ लीजिए, ये जो गया है प्रिजन का अंदर, उसके अंदर जो दूसरा जो है, सब तो इनका अंदर दे दिया है संभालने के लिए। We see that Joseph was in prison, but God, the keeper there, he put Joseph in charge of the prisoners there. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कारण क्या है, आप देख लीजिए, नेक्स्ट वचन में लिखा है। And the reason being, we read verse 23. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी। वो जो पर्सन इनके ऊपर छोड़ दिया ना, वो उसके ऊपर कह ही नहीं करता, सब कुछ यूसुफ संभालेगा। We see that the keeper of the prison did not even care about anything anymore, because it was under Joseph's authority. क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया, और Hallelujah. जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता। हालेलुया, Hallelujah. Amen. Amen. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? What is the first thing? ये देख लीजिए, जो 3 वचन में जो लिखा है, ये आपके जीवन में आज परमेश्वर कार्य करने Even वाला these है। 3 verses that we have read, even today the Lord will do a new thing in your life. तो क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, It says the Lord was with him, और यूसुफ ने जो भी काम करता है उसमें सफलता दे रहा and we है। see that whatever Joseph did, God prospered. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय, हो सकता है आपने कुछ भी काम करके अपने नाश हो जाए होंगे, Maybe, my beloved, you have worked and you have gone through much loss. आपने बिजनेस करके लॉस हो जाए होंगे, Maybe you started a business, it went under loss. दूसरे के अंदर आपने बंदीगृह में हो गए होंगे। Maybe you are under people's control because of debts. आप देख लीजिए, वो अभी भी बंदीगृह में गए अंदर है, फिर भी परमेश्वर किस तरह उनको छुड़ा रहा We है। see that he is in prison, but still in there God is elevating him. आपके जीवन में भी आज समय आ गया है, And my beloved, your life also today, now the time has arrived. जो कौन सी समय आ गया है? 2 कोरिन्थियन में चैप्टर 6 में वर्स 2 में क्या लिखा है? यही समय है तुम्हें अनुग्रह मिलने के लिए। And the word of God says in 2 Corinthians, now is the time of salvation. यही समय है तुम्हें बचने के लिए। Now is the time for your salvation. अगर जो यूसुफ ने चलो ठीक है बाद में देख लेंगे करके सोचा, तो वो इस तरह परमेश्वर उनके साथ में नहीं होता है। If he did not change or repent or did not live a life pleasing to God, Joseph, if he said that later on I will change, God would have not been with him. इसलिए पिछले दिन को पहले आपसे परमेश्वर जो बात किया है, आपके घर पे बैठने के समय में, आप उठने के समय में, आप चलने के समय में, आप सोने के समय में, आपको परमेश्वर के बारे में आपका बच्चे के साथ, बेटी के साथ में बात करना है। उसके बाद में आपको सोने के लिए जाना है। And the word of God we read some weeks back that when you sit, you stand, you sleep, you arise. तो इसी जैसे मतलब जो हर पल आपको क्या करना मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के बारे में सुनना है, सुनाना है, आपको उसका आगे पालन करना है।
ये आपको जीवन में आशीष को लेके आएगा, आपको जीवन में जो तकलीफ से छुड़ाएगा, आपको जीवन में समस्या से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है आपने बुद्धि नहीं है, आपने गलती किया होंगे, लेकिन अभी भी समय है परमेश्वर तुम्हें जीवन देने के लिए, परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देने के लिए, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए अभी भी यीशु मसीह तैयार है। And even now God is ready to bless you, to save you, to deliver you. Therefore you repent and turn back to Him. हम वापस पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 6 में जाएंगे। क्या करना है? चैप्टर 14 से शुरू वापस करेंगे। सबसे पहले आपको ये दो चीज के बारे में करना जरूरी है, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन के साथ में रहेगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, आमीन। जैसा परमेश्वर ने कहा। And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? And what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Hallelujah. Hallelujah. You are the Temple of the living gods. समान शब्द बोलो, you are the परमेश्वर आपका अंदर रहने है तो आप परमेश्वर का मंदिर बनाना जरूरी है। And if you want God to dwell inside of you, you have to be the temple of God. और हिंदी में पढ़ेंगे, कोई वचन पढ़ेंगे 16. मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। Hallelujah. अगर परमेश्वर तुम्हारा अंदर चलते फिरते तुम्हारे साथ में रहना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? And if you want God to dwell and walk among you, what you must do is, आपको परमेश्वर का मंदिर होना है। you have to become the temple of God where God dwells. ये जो लिखा है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर होना है। And the word of God says that your body is the temple of God. अगर परमेश्वर कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहता है। अगर आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया तो ये परमेश्वर आपका अंदर आएगा। And God dwells in the temple. If you say, then if your body is the temple of God, God will come and dwell in you. आपका शरीर को आपको पवित्र रखना है। And you have to keep your body holy. ये अभी ये क्या लिखा है? ये शरीर आपका नहीं है। The word says your body does not belong to आप ये you. सोचेंगे ये तो मेरा सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, मैं सब कुछ है। ये परमेश्वर अगर विश्वासी है तो परमेश्वर आपका शरीर परमेश्वर का है, वो पवित्र रहना है, तब वो पवित्र परमेश्वर तुम्हारा अंदर रहेगा। You might say that this is my body, I have rights over it, but if you are a believer, your body is the temple of God. God comes and dwells inside of you, so you have to live a holy life. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय, ये जो वचन जो लिखा है इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा? वर्स 17। Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और इसके बीच में से जो वचन में लिखा है 14 से लेके 16 तक जो लिखा है, मतलब परमेश्वर के खिलाफ जो काम करने वाले हैं, परमेश्वर के खिलाफ जो चल रहा है, पाप को अगर जीवन में बिता रहा है, जो आप विश्वास के साथ जो जोड़ रहा है, जो पाप का जिंदगी बिता रहा है, उसी में से छोड़ के बाहर आने के लिए देते हैं। And he says that come out from them. The them, when we read, it is from verse 14 to 16. The people who are in darkness, the people who are of this world,
God tells you to first come out from them all. क्योंकि आप परमेश्वर क्या लिखा है, परमेश्वर का ज्योति बन गया है। Because you are already the light. God has called you as a तो light to the आपको world. अंधकार के साथ में आपको कुछ भी संबंध नहीं है। You have no connection with darkness. आप नहीं हो सकता है। You cannot. हम रह गए दुनिया में रहना है, लेकिन आपको इसमें अलग रहना पड़ता है। You might live in the world, but you have to be separated. इसका मतलब ये तो नहीं आप किसी के साथ बात नहीं करना है। It does not mean you ignore the others or you do not talk to the आप others. बात कर लीजिए, आप मिलिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपका जीवन परमेश्वर का यीशु मसीह को दिखाना का जरूरी है। You can live, of course, with them. You are with them in the world, after all. But you must know and you must show that you are the Lord's. क्योंकि यूसुफ का कार्य के बारे में वो जो अधिकारी देख लिया है, ये पवित्र जीवन बिता रहा है, ये पवित्र परमेश्वर का दास है करके उनको पता चल गया। And we see that the keeper of the prison could see God is living with Joseph, that he is living a holy life and he deserves that तो authority. क्या लिखा है, परमेश्वर सिचुएशन को बदलेंगे, God is the one who changes the क्योंकि वो आपका situation. शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है। Your body is the temple of God. तो परमेश्वर आपका अंदर शरीर में आ गया है। God dwells in you. तो परमेश्वर क्या कहते हैं, वर्ष 18 में जो लिखा है, मैं तुम्हारा पिता होंगे, And now God says that I will be a father to मैं you. तुम्हारा बेटा, तुम मेरा बेटा बेटी बन He जाएंगे। says you shall be my sons and daughters. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का आपसे जो बात करते हैं, आपको इसका आज्ञा पालन कर लीजिए, My beloved, has God has ministered to us, obey His word. विश्वास कर लीजिए, Believe His word. आपको परमेश्वर उच्चार करने वाला है। Surely God will elevate you. आपके जीवन में उच्चार करने के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को अपना ले लो। First, accept the Lord and as your Savior. जो परमेश्वर को जो ना पसंद है, हर चीजों को हटा लीजिए आपके Everything जीवन that में। displeases the Lord, let it get out of your life. वो वचन में लिखा है, वो कुछ छूना भी नहीं चाहिए करके लिखा It है। says, touch no unclean thing and I will accept you. अगर आज से आपका जीवन बदल दीजिए, आप कोशिश करो, आप देख लो, आपको जीवन में सफलता होंगे। Even today, if you change, if you transform, and you will see surely success knocking at your जो door. आपके जीवन में जो समस्या है, हर समस्या को परमेश्वर ठीक करेंगे। And whatever problems you're going through, God will take care of it. जो उसी में क्या करना है, जो चीज आपको नहीं पसंद है, आपको मालूम होगा ये परमेश्वर को पसंद है, ये परमेश्वर को ना पसंद है। कैसे मालूम पड़ेगा? And how will you know whether God is pleased or displeased? तो परमेश्वर का वचन भी सुनना बहुत जरूरी है। Listen to the word of God. सुनिए, ये जो परमेश्वर को जो वचन में जीवन है, ये जो परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, ये जो परमेश्वर के वचन में अनंत का जीवन मिलने वाला है। And we see that the word of God has life, it has power, and there's eternal life in it. उसको पर विश्वास कर लीजिए। Believe in the Lord. आप देख लीजिए आज के दिन से आपके जीवन में किस तरह जो बदलता है, And from today you will see the transformation in your life. जो किस तरह जो यूसुफ के जीवन में जो परमेश्वर ने जो जगह से उठा लिया, उसी जगह से आप जो फंस गया है, वो क्षेत्र में, वो जगह से आपको परमेश्वर ऊंचा And करेगा। just as how God delivered Joseph from the prison, wherever bondage you are in whatever prison you are in, God will deliver आपको you. ये भी पता होगा, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने के बाद, अपने भाई लोग आ रहा है वापस मिस्र देश में आने के बाद, We see that after Joseph became the prime minister, his brothers came to the land of Egypt, सब जन उनको डर गया देखे। and everybody was fearful of him. याद रखो, आपको ये भी एक लास्ट वर्ड आपसे परमेश्वर आपका बात करना चाहता है। वो जो भाई लोग आने के बाद यूसुफ को मालूम है, यही भाई लोग मुझे कट्टे में डाला था, यही भाई लोग मुझे तकलीफ दिया करके यूसुफ को मालूम हो When गया। the brothers came to Joseph, Joseph knew that these are the same brothers who threw him into that pit, who gave him so much trouble. और वो यूसुफ ने क्या किया है, यूसुफ ने उसको भूल गया है, और वो भाई लोग में मालूम पड़ा अभी यूसुफ यही है, यूसुफ है, तो सब जन डर गया, अभी हम सबको खत्म करना है, क्योंकि वो अधिकार उनका हाथ में है। And Joseph, of course, recognized his brothers, and when the brothers also came to know that this is Joseph, they were fearful because he might take revenge on them. और वो जो क्या मतलब जो वापस हम जाएंगे जेनेसिस देख लेंगे, वो जो है सबको मालूम पड़ गया, अब ये भाई है, हम इनको भाई की तकलीफ दे दिया, अभी हम सबको खत्म करेंगे, लेकिन यूसुफ ने बदला नहीं लिया है। We see that the brothers were fearful and scared that Joseph will take revenge, but he did not do so. और
आपने यही याद रखना है, परमेश्वर हो सकता है आपको ऊंचा करने के बाद Even after God has elevated you, आपका जो भाई बहन जो भी है उनको आप बदला नहीं लेना है। after God has elevated you, don't go around taking revenge from your brothers and हम sisters. वचन में पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 45, देख लीजिए वो क्या बता रहा है। वर्स 2 में देख लें, पहले सबसे पहले वर्स 2 पढ़ेंगे 45 सब। And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. तो सब जन रो रहा है, कौन? यूसुफ रो रहा है। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। वर्स 3, Then Joseph said to his brothers, I am Joseph. Does my father still live? But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वो सब कुछ मालूम पड़ गया, इतनी तकलीफ दे दी, अब ये क्या होने वाला, क्योंकि वो जो लिखा है क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। तो आगे बढ़ो। And Joseph said to his brothers, Please come near to me. So they came near. Then he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वह निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। आप ये देख लीजिए, और जो क्यों यूसुफ को बस क्या अधिकार दिया, हम वो भी वचन पढ़ेंगे। चैप्टर 41 वर्स 44, मतलब उसको बाद में उसको अंगूठी दे रहा है, उनको अधिकार दिया है। वो क्या अधिकार दिया है? Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no man may lift his hand or foot in all the land of Egypt. फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिलाएगा। हेलो, क्या आप सुना होंगे? कोई मतलब मैं पारो है, पूरा देश का है, लेकिन तुम्हारा आगे के बिना कोई भी व्यक्ति हाथ भी और पैर भी हिला नहीं सकता है। It's said that he's saying, I am Pharaoh, but in front of you, no one without your consent can even, lift their hand or their legs. अभी ये बाइबल देख रहा है, मतलब जो इस तरफ, मतलब अगर उनका देश वाला भी कोई हाथ पैर हिला नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा? The brothers must be wondering, if the people of Egypt themselves can't lift hand and leg, then what will be our याद रखिएगा, life? लेकिन यही यूसुफ ने सब कुछ क्षमा किया। But we see that this is the same Joseph who forgave them all. यही तो अपने जीवन में चाहिए। But this is the तो characteristics of परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, लेकिन आपको ऊंचा होने के बाद अब वापस गलत नहीं करना है। And God will elevate you, bless you and lift you up, but do not do wrong. आमीन। Hallelujah. ये जो संदेश आपको आज के दिन नया जीवन दे दिया है, हम विश्वास करते I हैं। believe that the word of God has granted you new life and spoken into your life today. आपके जीवन में परिवर्तन होने की शुरू कर दिया है। God has surely begun a new transformation जो in your life. परमेश्वर आपको जीवन में रहने के लिए आप उसके लिए क्या क्या करना है वो आपको करना जरूरी And है। whatever you need to do and change and turn things around for the Lord's sake, do it from today. आप अपने जीवन में समर्थन कर लीजिए। Submit your life to God. जो वचन में क्या लिखा है, जो अनुकूल समय, जो 2 कोरिन्थियर में चैप्टर 6 वर्स 2 में जो लिखा है, मतलब यही समय है, अभी यही समय है। And the word of God says that now is the appointed time. Now is the time of salvation. अगर मेरा भाई, मेरा ये संदेश सुनने वाले, जो देखने वाले, अगर आप विश्वासी नहीं है तो भी परमेश्वर आपको पर भी प्रेम करता है। My beloved who are hearing us, even if you are an unbeliever, you do not know the Lord Jesus, Jesus loves you क्योंकि ये also. जो लिखा है यही समय, मतलब आप सुनेंगे, बाद में कोई दिन हम उधार पाएंगे, बाद में एक दिन मैं जीसस को स्वीकार करके आप सोचो मत। Do not think that later on I will accept the Lord Jesus, later on I will come to know about Him. आपको याद होंगे पिछले दिन का पहला परमेश्वर ने आपसे जो बात किया है,
वो जो पौलुस को और सीला को जो जेल वाले ने मतलब उनको काफी मारा था, बंदी के अंदर डाला, उसकी बाद में परमेश्वर उनको छुड़ा दिया करके मालूम होने के बाद वो सुबह सुबह आंखें देख रहा है, वो जो सब बंदी गृह खुला हो गया, जेल खुला हो गया, सब कुछ ये सब भागे करके वो रो रहा था और अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश किया था। And we read some few weeks back about Paul and Silas when they were beaten and they were thrown into prison, and there the Lord delivered them. And when the jailer there came to know that all the chains have been broken, he was fearful that all the prisoners have fled away. So what he did was he tried to kill वो himself. क्या कर रहा था, तुरंत वो उसमें रात को समझ लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड, वो रात को अपने घर पे लेके गया है। वो पूछ रहा है हम उद्धार पाने के लिए, मैं बचने के लिए हमको क्या करना In पड़ेगा। that midnight time, he goes and asks them that what must I do to be saved? समथिंग समझ लीजिए, कोई बहुत चीज ये लिख के रखा है, ये क्यों लिख के रखा है, इसी में से हमें पढ़ना है, हमें सुधरना है, हमें सीखना है। There's so much written in the Word of God, but we must accept it and we must change. वो क्यों लिखा है देख लीजिए, वो रात को लेके जाके वो पूछ रहा है, वो कल सुबह पूछ सकता था उनसे। He could have gone the next morning to go and ask them these questions. वो लिखा अपने लिए खाना बना के दे रहा है। We see that in the night itself they gave them food to eat. और जो पौलुस बता रहा है, तुम विश्वास यीशु के ऊपर विश्वास करके तुम बपतिस्मा ले ले, अपने पापों को छोड़ के तुम अनंत का जीवन तुम्हें मिलेंगे करके। And here we see that Paul tells him that you give your life to the Lord, you be baptized and be saved. आपको पता है क्या, बड़ी वंडरफुल थिंग क्या है, वो मिडनाइट में समझो रात को वो बपतिस्मा ले लिया है। We see that even that night, late night time, they all took baptism. वो एक व्यक्ति सुधर गया, एक व्यक्ति मतलब जो प्रभु को स्वीकार किया, उसके पूरा खानदान भी सब जन सुधर गया। We see that one man accepted the Lord Jesus, he was saved, his whole family, his whole household was saved. आपको याद रखना है, ये वचन सुन लीजिए, जो दिखा रहा है, जो जेलर मतलब स्वीकार किया, वो अकेला पूछ सकता है, हाँ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा करके पूछ सकता है। And we see the jailer of course heard the word, he could have asked only for himself, then what must I do to और be उनका saved? पत्नी बेटा बेटी जो सब जन को मतलब वो आने की क्या जरूरत है। What was the need for him to go and tell all his family members? याद रखो, परमेश्वर का जो प्रेम ऐसा है, उसके टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट होता है। And the Lord's love is so much, and when we taste and see, he is very good. वो जो अधिकारी को मालूम पड़ा, ये जो पौलुस का बस परमेश्वर है, यीशु मसीह है करके, वो बोला मुझे अभी कभी मेरे को बपतिस्मा दो। And we see that the jailer recognized that Paul and Silas had the Lord Jesus, Lord with them, so he says that we want to be baptized मैं ये tonight. जो वचन पढ़े थे, मेरा मन करने होता था, अगर उनके जवान बेटा होंगे बेटी होंगे, हमें नहीं करना है, तुमको मंगते तो तुम ले लो, ऐसा बोल सकता था We ना। can just imagine and see, suppose that he had young children, even the sons and daughters who could have back answered and said that why should we be baptized, you alone get baptized. तो अगर आपका पिताजी परमेश्वर को स्वीकार किया तो आप स्वीकार करेंगे। If your father has accepted the Lord Jesus, will you also accept? आपका बेटा अगर परमेश्वर को स्वीकार किया तो आप स्वीकार करेंगे। If your son has accepted the Lord Jesus, will you accept? आपका भाई परमेश्वर को स्वीकार किया तो आप उसके साथ स्वीकार करेंगे। If your brother has accepted the Lord Jesus, will you accept? सुनिए, यही तो वचन लिखा है, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करें, तुम्हारा पूरा घराना, क्योंकि वो सब जन वो पिता का आज्ञा पालन किया है। And we see that when the word of God says that when you accept the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. The Lord, the Father, was responsible for the whole household. हालेलुया। Hallelujah. अब देखिए, सब जन रात को बपतिस्मा ले लिया We see that the whole family was baptized that same night. और उद्धार पाया, They accepted and they और were saved. सब जन खुशी से आनंद मना And the word of God says they rejoiced much. Hallelujah. यही समय है मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चों, My brothers, my sisters, my children, this is the time. ये जो वचन का द्वारा लिखा है, आज प्रभु आने से पहले प्रभु समय दिया है हमें परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, आनंद पवित्र जीवन बिताने के लिए, ये समय को हमें आपको संभालना जरूरी Jesus है। is coming soon, and even now God has given us time to repent. Make use of this time and you turn away from your old life. हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray.
मेरे परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। My Lord Jesus, we thank you at this time. प्रभु आप हमारा अंदर आने के लिए आप मांग रहे हैं प्रभु। Lord, thank you that you have asked of to come into our हमारा lives. शरीर पवित्र मंदिर बनने के लिए आप मांग रहे हैं You have प्रभु। asked us that our body must be holy जो to प्रभु you. जो आपका आज जो वचन जो सुना सब भाई बहन बच्चे सबके जीवन में कार्य कर Lord लीजिए। Father, all those who are hearing your word today, we pray you'll start working in their lives. नया जीवन दीजिए, Give them a new life. अनुग्रह कर लीजिए, पुराना पापों से पुराने जिंदगी से प्रभु बाहर निकाल दीजिए प्रभु। We give them new graces and redeem them from all their old lives. जो सबको जीवन में सिचुएशन को बदल कर दीजिए प्रभु। We pray that you will change their situations. जो अभी जो प्रभु आंसू के साथ जो बैठा है, जो रो रहा है अपने जीवन में अभी क्या करूं, कैसा जीऊं करके जो रो रहा है, इनके जीवन के लिए प्रभु आज नया कार्य कर We लीजिए। pray that all those who are seated in tears, praying that what must happen, what must we do. Even today we pray that you will deliver them and you will redeem them. परमेश्वर आपको पवित्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपके सब कुछ होगा प्रभु। Lord, you are a holy God and your Holy Spirit can do all things. जो वचन में जो लिखा है, मनुष्य का पुत्र जो सोचा सब कुछ होगा करके। Your word God says that the Son of God has authority over everything. और जो लिखा है पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा And करके। your word of God says by the Spirit all things are possible. जो प्रभु अभी तक जो सबके जीवन में जो नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सबके जीवन में हाँ करके दीजिए प्रभु। Lord, all those who are in lack today, even today, through your word, tell them yes and grant them the blessings, जो Father. अगर जो डॉक्टर जो बता रहा है ये ठीक नहीं है, ये इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा करके कोई भी बीमारी के साथ जो देख रहा है, तो प्रभु सब कुछ आपसे पॉसिबल है प्रभु। Lord, even if the doctors have concluded saying that it is impossible, for you all things are possible. समाज के ऊपर रोके चुप के इंसल्ट होके रोके के जो बैठा है भाई बहन, तुम्हारे जीवन में आज नया जीवन परमेश्वर देने वाला है। Hallelujah. We pray, Lord Jesus, that all those who are insulted in society, hiding from society, living in tears, we pray even today you deliver them. क्योंकि यीशु मसीह जो कहता है जो इम्पॉसिबल था, जो बगैर वाला बोलेंगे ये कैसा होगा, लेकिन मेरा यीशु कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम टुडे। Even from today onwards, even if people can say that how can these things happen, but God in front of the eyes, Lord, you can do great things. आज के दिन से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य कर दिया है। Lord, thank you that you're going to do a new work in your तुम्हारे life. जीवन में नया कार्य करने के लिए परमेश्वर मांगते हैं, तुम अपने आप को हवाले करो। God is talking to you and ministering you today that if you change your life, give your life to the Lord even today. तो तुम भी गवाही बनाएंगे। And God will make you a testimony. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज के जो सुना सबके जीवन में कार्य कर लीजिए। Lord Father, we pray that all those who have heard the word of God, you will perform a mighty work in their आपका life. नाम महिमा के लिए होने दो। Let your name be glorified. सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask in the name of our Lord and Savior Amen. Jesus Christ. Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. आशीष की प्रार्थना मेरी पूछिए दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमीन। ब्लेसिंग लेंगे। संकट के समय में, तकलीफ के समय में बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य करने की शुरू कर दिया। My beloved, God has begun a new work in your life आपके today. जीवन में नया जीवन आ गया है। God has granted you a new life नया today, चंगाई कर दिया a है। new healing. आप उनके बेटा बेटी बन जाओ। You become His son and daughter, प्रभु का जो चमत्कार आप देख लीजिए। and you will watch God performing works in your lives. और आपके जीवन में जो परमेश्वर जो चंगाई जो किया है, हमें बताइए, हमें फोन में बताइए, मैसेज में दीजिए, हम सब मिलकर परमेश्वर का हम धन्यवाद And देंगे। when God has performed a miracle in your life, tell us, write to us, maybe in the message or a comment, so that we will know and we'll give glory to God. आमीन। Amen. God bless you all. Hallelujah. And we thank you for
taking this time out to hear the word of God, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हम सब से बात किया है। जिसके पास कान हो वह सुने। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत महान है। हम विश्वास करते हैं आने वाले हफ्ते में भी परमेश्वर हम सबको संभाल के एक आशीषित जीवन बिताने का आशीष देंगे। आमीन। हफ्ते की जो भी मीटिंग जूम पे रहते हैं उसका नोटिस आपको दिया जाएगा। बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल द चर्च एक्टिविटीज। सभी एक्टिविटीज जो चर्च के हैं उसमें इन्वॉल्व होइए, प्रार्थना पूर्वक रहिए। हम जानते हैं कि दुनिया में तो है पर दुनिया हमारा नहीं है। आमीन। सो कंटिन्यूली कीप इन प्रेयर्स, बी प्रेयरफुल। आज का दिन भी यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। आज का आशीष, जैसे पास्टर ने कहा, today is the day of salvation. Now is the appointed time. Amen. We believe even today is a day of blessing for each and every one of us. प्रभु हम सबको आने वाले दिन में बहुत मान रीति से आशीष करे। God bless you all. Have a blessed Sunday ahead.